اب ان کے فوراً کے بعد خطیب اہل بیت محسن رضا علوی آف گوجرا وہ مدحت محمد و آل محمد بیان کریں گے بآواز بلند صلوات۔ جس دن بندے کو مقام جتنا یاد ہے اتنی بلند آواز سے درود اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأولاد المعصومين الطيبين الطاهرين المظلومين المهديين ولعنة الله على القوم الظالمين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسین مني وأنا من الحسين بلند الصلوات عاشقان رسول و عاشقان شوہر بطول و عاشقان فرزند رسول گدایان در بطول حبداران اہل بیت رسول سب سے پہلے دعا ہے کہ کائنات کا عظیم عالم ہمارے علم محمد و اہل بیت محمد میں عظیم اضافہ فرمائے مالک اس فرشیدار کے بانیان کے عزت رزق اور صحت میں اضافہ فرمائے انہیں اس سے مزید بڑھ چڑھ کے ذکر امام مظلوم کربلا کروانے کی توفیق عطا فرمائے کافی آباد تشریف فرما ہے مل کے دعاؤں پہ آمین کہنا میرے اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زبان پر ورد علی جن ولی اللہ جاری فرما قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے بار میں آقا حجت دورہ ولی الاسد مولا کے ظہور میں تجیب فرما دعائیں قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کا لیں مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائیں اجازت ہے ذکر شکریہ حکم تا عزت کا زیرکار جناب افضال رضا سلطانی صاحب کا ان کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی اور آپ کے مقدس چہروں کی زیارت بھی ہو گئی بغیر کسی تمہید کے حسین ابن علی کے ماتمیوں میں پہلا جملہ حسین ابن علی کی فضیلت کا پڑھنے لگا ہوں اور حسین ابن علی کے ماتمیوں کے چہرے پڑھنے لگا ہوں کہ کون کون سا عزادار کہاں کہاں معرفت کے کس زینے پہ تشریف فرما ہے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا انسان سے مسلمان بنایا اگلا احسان اللہ نے ہم سب پہ یہ فرمایا کہ ہمیں یزید کا پیروکار نہیں ہمیں عاشق حسین بنایا جی آپ سلامت رہیں بے مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے میں نے بغیر تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا ہے میں جملہ پڑھوں گا سائل بھائی بندوں کے چہرے پڑھوں گا کون کون سا حسین ابن علی کا نوکر کہاں کہاں معرفت کے کس زینے پہ تشریف فرما ہے اور آسان کرتا ہوں اللہ کا جتنا ساری زندگی بھی ہم شکر ادا کرتے رہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم غدار نہیں حسین کے عزادار ہیں جن کا رہبر علی ہے حیدری جن کا پیشوا علی ہے حیدری جن کا ہادی علی ہے حیدری جن کا امام علی ہے حیدری دونوں ہاتھوں سے نعرہ حیدری ہم غدار نہیں بلکہ ہم حسین کے عزادار ہیں یقین
यकीनन मेरी कौम के नौजवान बोल के मेरी बात की तारीफ करेंगे। जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बैठे हो, आप पारा चनार का वाकया उठा के देखें। हुसैन के मातमियों को सरेआम शहीद किया गया या नहीं किया गया? बोलो फिर। मैं आपके मजहब की वकालत कर रहा हूँ। जो बुजुर्ग बैठे इनसे दुआ लेने के लिए आसान करता हूँ। उठा के देखो पारा चनार का वाकया। मेरी कौम के नौजवानों को सरेआम शहीद किया गया, मेरी कौम के नौजवानों को सरेआम कत्ल किया गया, मेरी कौम के नौजवानों को सरेआम ज़िबा किया गया। लेकिन जितने हुसैन के मातमी मेरे सामने मुर्दा बन के नहीं मर्द बन के बैठे हो, जितने जिंदा हुसैन के मातमी बैठे हो, आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं कि हमने लहू दिया है, हमने अपने हुसैन के नौकर दिए हैं, हमारे बंदे कत्ल हो गए हैं। आपने चेहरे पे परेशानी नहीं लानी, आपने परेशान नहीं होना। उसकी दलील ये है कि 1400 साल से हुसैन के नौकरों की तारीख इस बात की गवाह है, बदन सलामत ना भी हो तब भी जुबाने हुसैन के जिक्र को नहीं छोड़ती। मासूम का फरमान है, बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ। मैं अक्सर दुनिया के हर मिंबर पे जाके कहता हूँ, जब भी कोई पढ़ने वाला खतीब जाकर वाइज अलमागराम कोई भी मिंबर से आके अली का फजाइल पढ़े, हसन का फजाइल पढ़े, हुसैन का फजाइल पढ़े, सज्जाद का फजाइल पढ़े, बाकर का फजाइल पढ़े, सादिक का फजाइल पढ़े, कासिम का फजाइल पढ़े, रजा का फजाइल पढ़े, मूसा कासिम का फजाइल पढ़े, तकी का फजाइल पढ़े, तकी का फजाइल पढ़े, अस्करी का फजाइल पढ़े। जो बंदा नहीं बोल सका, अगर मिंबर पे पढ़ने वाला पारने के फजाइल पढ़े और मिंबर पे सामने बैठ के चुप ना हुआ करो, बल्कि इन हस्तियों के फजाइल सुन के जो चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आया करो, चेहरों को खिला हुआ रखा करो, क्योंकि इनका जिक्र ऐसा है जिनको सुन के सिर्फ चेहरे ही नहीं खिलते, अरे शजरे भी खुलते हैं। भाई माहौल देखना आप क्या बन गया है। जितने आगे मेरे लिए काफी हैं जो बंदे हुसैन के मातमी बन के बैठे हो, हुसैन के नौकर बन के बैठे हो। क्या कहने मेरे हुसैन इब्ने अली करीम के करीम बेटे के सखी बेटे के नथु चाकर गिरदो नवा हुसैन के मातमी आने वाले जो मेरे सामने बैठे हैं, मुझे इज्जत शब्बीर की कसम है, वो जो 9 लाख करबला के मैदान में हुसैन को मिटाने के लिए आए थे ना, उन्हें ये खबर ही नहीं, शसीदियत को ये खबर ही नहीं क्या हुसैन नूर है और नूर कत्ल होता नहीं। बोलना चाहिए था, हाथ उठाना चाहिए था जिस हुसैन के मातमी का हाथ नहीं उठा। ना 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 ना, जिसने हाथ नहीं उठाया उसके लिए जुमला आसान कर देता हूँ। 1400 साल से हमारी तारीख इस बात की गवाह है, हमने जनाजे उठा लिए, हमने हुसैन नहीं छोड़ा, हमने घर चलवा लिए, हमने अली की वलायत में समझौता नहीं किया। जिनके हाथ नहीं उठे मैं समझूंगा वो बंदे मजबूर है या वो बंदे मगरूर है। मुझे इज्जत शब्बीर की कसम है, आज भी ज़माना इस बात से परेशान है, हम हुसैन के मातमियों को अपनी तलवारों के साथ काटते हैं, जे कट के भी नहीं कटते। बोलो बोलो बोलो, जिनके अंदर हुसैन बस रहा है, बुजुर्गों के हाथ उठ जाए मेरे लिए दुआ बन जाते हैं। जो नौजवानों के हाथ उठ जाए मौसम ज़ाहरी की किताबत को टेक मिल जाती है। आज भी हुसैन का दुश्मन अपने अंदर ही मर रहा है, ये सोच सोच के हम हुसैन के नौकरों को मारते हैं। अगर ये मर के भी नहीं मरते, हम इन्हें काटते हैं, ये कट के भी नहीं कटते। बंदे ये कहते हैं तारीफ के लिए हाथ जरूर उठाना, बंदे ये कहते हैं अरे इतना मुश्किल दौर आ गया है, इतना मुश्किल जमाना है, पता ही नहीं कहाँ किसको बम ब्लास्ट करके मार दिया जाए, पता ही नहीं कहाँ किसको गोलियों से छलनी करके मार दिया जाए, पता ही नहीं कहाँ किसको तलवार से ज़िबा करके शहीद कर दिया जाए। फिर भी ये हुसैन के नौकर हैं, ये जिंदगी और मौत को कुछ समझते नहीं है, ये घबराते नहीं है। इन्हें पता चल जाए नथु चक में मजलिस है, ये फिर भी मौत से नहीं डरते। अपने छोटे से बच्चे की
हरकत नहीं दे सके। लिसानुल्लाह को पीर भी मानते हैं, अली को रहबर भी मानते हैं, अली को पेशवा भी मानते हैं, फिर उस लिसानुल्लाह को मौला मान के उसी के बेटे के जिक्र में अपनी जुबान को चुप लेके मेरे सामने बैठे रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता। हुसैन के दुश्मन अंदर ही अंदर मर रहे हैं, हम इन्हें मारते हैं, ये मर के भी नहीं मरते। इतना मुश्किल तोड़ है, पता ही नहीं कहाँ किसको मार दिया जाए, पता नहीं कहाँ किसको काट दिया जाए। ये फिर भी नहीं घबराते, ये फिर भी परेशान नहीं होते। आखिर इन्हें जिंदगी प्यारी नहीं, इन्हें बच्चे प्यारे नहीं। मैं चुमना जनाब की हथेलियों पे रखने लगा हूँ। मैं कहता हूँ हमें भी जिंदगी प्यारी है, हमें भी बच्चे प्यारे हैं, लेकिन हम करें तो करें क्या? हमें जिंदगी तो प्यारी है, हुसैन जिंदगी से भी प्यारा है। ऐसे नहीं सारे बोलो, मिलके बोलो, अंदर वाले, गली वाले, भाई वाले, मोहल्ले वाले, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, दोनों हाथ ऊंचे, नाराए हैदरी। जिनका पीर अली है हैदरी, जिनका रहबर अली है हैदरी, जिनका पेशवा अली है हैदरी, दोनों हाथ ऊंचे, नाराए हैदरी। कोई नौकरी पसंद आई इस नौकरी की बात पहुंची है जनाब तक? तारीख तो उठा के देखिए। अरे बाबा वो 9 लाख जो हुसैन को मिटाने के लिए आए थे, उनकी ये कोशिश थी हम हुसैन के गले को काटेंगे, फदाइल का जुमला पढ़ते, फिर कहीं हुसैन की बातें नहीं होगी। नहीं, जो इतनी बारिश में भी हुसैन का मातम करने के लिए बैठे होगा, वो बंदे बोल के मेरी बात की तारीफ करना। आज मातमियों ने इतनी बारिश में भी अपने कपड़े भिगो के यहाँ पे आके दुनिया को बता दिया। समझ जाओ हुसैन मौसमों का मोहताज नहीं। बोलो बोलो, हाथ उठाओ जो हुसैनी बैठे हो। अरे जिस बंदे का हाथ अभी भी नहीं उठा, हाथ उठाना। सैयदा से खिरात पाना, हाथ उठाना। मुस्तफा से खिरात पाना, हाथ उठाना। और मुर्तजा से खिरात पाना। वो 9 लाख बुजुर्गों करबला अली की इज्जत की कसम है, करबला में ये सोच लेके आए थे हम हुसैन को मिटाएंगे। फिर कहीं हुसैन की बातें नहीं होगी, कहीं हुसैन की यादें नहीं होगी, कहीं हुसैन के नगमे नहीं होंगे, कहीं हुसैन के किस्से नहीं होंगे, कहीं हुसैन के कसीदे नहीं होंगे। उन्हें पता ही नहीं। आज देखो 1400 साल के बाद ऐसा जीता है अली का लाल। आज घर घर हुसैन की बातें। जिन्हें पता है कि हुसैन की बातें हो रही है, आज हर गली में हुसैन हुसैन हो रहा है। इन बच्चों के क्या कहने, ये जो बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं मेरे लिए भाई से निजात बन गए हैं। 4 तारीख उठा के देखो, वो जो तुम हुसैन को मिटाने के लिए आए थे ना, आज घर घर हुसैन की बातें, घर घर हुसैन की यादें, घर घर हुसैन के नगमे, घर घर हुसैन के किस्से, घर घर हुसैन के कसीदे। वीडियो में परेशान मुझे वो हाथ दिखाना, कैमरा लगा के। हुसैन का नौकर भी था, हुसैन के मातमी का हाथ भी था, फदाइले हुसैन में उठ नहीं सका। आज देखो ना दुनिया का मंजर। आज मेरा मुर्शिद हुसैन किसी मजहब का मोहताज नहीं। आज हिंदू भी हुसैन हुसैन कर रहा है, आज ईसाई भी हुसैन हुसैन कर रहा है, आज सिख भी हुसैन हुसैन कर रहा है। आज दुनिया के कोने कोने में हुसैन, आज दुनिया की हर गली में हुसैन, हर चौक में हुसैन, हर नगरी में हुसैन। फिर 1400 साल के बाद दुनिया का यह मंजर देख के मैं ये जुमला कहने का हक रखता हूँ कि जब मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। हुसैन हुसैन आज ऐसे ही नहीं हो रहा। आओ बताओ आखिर वजह क्या है? हुसैन ने ऐसा किया क्या कि आज घर घर हुसैन की बात नहीं।
सांस ले लेना, जुमला वसूल करना, पहली सत्र पे पता चलेगा कि जुमले ने कहाँ क्या असर किया। आज घर घर हुसैन की बातें क्यों? आज दीन ऐसे तो नहीं बचा। आसान करो, आज मस्जिदों में अजानें हैं, मेरे हुसैन का सदका। बोलो यार, हुसैनी बैठे हो। जिसका अकीदा इजाजत है, जिसका अकीदा इजाजत ना दे वो बंदा नथु चल के इस इमाम पारगा में कानों में भी उंगलियां ले सकता है, सर भी झुका सकता है। जिसका अकीदा इजाजत दे वो उठ के भी बोले, जुमले का हक अदा नहीं होगा। आखिर हुसैन ने किया क्या? जाओ जाके तारीख उठा के देखो। आदम भी अल्लाह का दीन बचाने आया था, नूह भी अल्लाह का दीन बचाने आया था, इब्राहिम भी अल्लाह का दीन बचाने आया था। जिसका हाथ नहीं उठा, मूसा भी अल्लाह का दीन बचाने आया था, ईसा भी अल्लाह का दीन बचाने आया था। लेकिन तारीख गवाह है, जैसा दीन अल्लाह का मेरे हुसैन ने बचाया है, जैसी नमाजें हुसैन ने बचाई है। आज मस्जिदों में अज़ानें हैं, मेरे हुसैन का सदका। आज नमाजें हैं, मेरे हुसैन का सदका। आज रोजे हैं, मेरे हुसैन का सदका। फिर मैं चंद सतरे आपके हवाले करूं। आखिर ये वजह क्या है? हुसैन ने जिक्र खुदा को आला बना दिया। हुसैन ने जिक्र खुदा को आला बना दिया, बेनाम थी करबला वो अल्लाह बना दिया। सोचो कि कितना पकीज़ा है खूने हुसैन, गिरा खाक पे तो खाके शिफा बना दिया। गिरा खाक पे, जिसे पता है नजफ अशरफ है, मशहद मुकद्दस है, मक्का मुअज़्ज़मा है। अब भी बंदे ना बोले फिर मैं जानूं या मेरा मुकद्दर जाने। अभी अता हुआ मिंबर पे सैयदा ने करम किया, मैं घर से सोच के नहीं आया था ये जुमला पढ़ना है, लेकिन मैंने ये जो जुमला पढ़ा है इसी के हवाले से जुमला अभी अता हुआ है। झूठे पे कुरान में अल्लाह की लानत है। जो हुसैन हुसैन करने वाले बैठे हो, नजफ चले जाओ, नजफ अशरफ है, मक्का मुअज़्ज़मा है, मशहद मुकद्दस है, करबला मुअल्ला है। दुनिया में कोई धरती ऐसी नहीं जो आपको मुअल्ला नजर आएगी। एक वाहद हस्ती ऐसी है कि जो मुअल्ला है। शुभ हो गए जो इसी हुसैन का नाना अर्श पे उसे मिलने गया था। यही हक है, यही हक है जो मार्फत वाले बैठे हो। आप बचपन से सुनते आ रहे हो सरदारुल अंबिया है। पढ़ो मैं जुमला ये छोड़ दूं, कोई आम हस्ती तो नहीं ना, नबियों का सुल्तान है, सरदारुल अंबिया है। ना जिसने मेरी आगाज़े गुफ्तगू से लेके अभी भी हाथ उठा के बुजुर्ग हुसैन को सलामी पेश नहीं न की, उसका झुका हुआ हाथ उठवाने के लिए मैं अपनी जिंदगी की मेहनत आपकी हथेली पे रखने लगा हूँ। आखिर कौन गया था मेराज पे? कौन गया था अर्श पे अल्लाह से मिलने के लिए? जो हुसैन का नाना है, सैयदा का पापा है, अली का भाई है। कौन है वो? जो सरदार दो आलम है, सरकार दो आलम है, सरदारुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, सरकार मदीना है, कल्ब राहत सीना है, ताजदार मदीना है, इश्क़ अव्वल है, इल्म अव्वल है, अक्ल अव्वल है, महबूब खुदा है, ख्वाजा हर दो सदा है, शादी रोज़े जज़ा है, पुश्त पनाह है, हर बेनवा है, अमीमुल जुद वल अता है, अज़ीमुर रजा है, नबीयुल अंबिया है, हबीब किबरिया है, अहमद मुस्तफ़ा है। थक गए हो शब्बे असरा के दुल्हा? बंदों के दिलों की धड़कनों से भी हुसैन इब्ने अली के लिए लब्बैक किया। हुसैन की सदा बुलंद ना हो तो मौला ने कुछ अता ही नहीं किया। कौन है मोहम्मद मुस्तफ़ा जो शब्बे असरा के दुल्हा है, ताजदार अंबिया है, बेकसों के हाजत रवा, वसीला अज़मा, मतलूब रब्बुल अर्ज़ व समा, फलके नबूवत के आफ़ताब, हुस्न यूसुफ के शबाब, मनबाए अनवारे महताब, अफ़ज़ल किताबुल मुस्तजाब, सैयद सादात, रूहे जाने कायनात, फातिह बाबे शिफात, अंबिया के सरताज, बेकसों की लाज, जनाब रिसालत व आब, साहब ताज वल मिराज, फरहान वाजिबुल वजूद, साहब मकाम महमूद, मनशा रब्बे मदूद, हामिदो अहमदो मोहम्मदो महमूद। थक आप गए हो, पढ़ मैं रहा हो, हामिदो अहमदो मोहम्मदो महमूद, हजूर पुरनूर, शाफी यौमुल मशहूर, नूर अला नूर, हबीब रब्बे गफूर। कौन मोहम्मद
के बावजूद नहीं ना बोल सका, आदम चलेगा तो मुस्तफा के पीछे। मैंने किसी बंदे की बात नहीं की, आम बशर की बात नहीं की, जो बंदे मार्फत वाले बैठे हो, आदम चलेगा तो मोहम्मद मुस्तफा के पीछे। और आसान कर देता हूँ, आदम सफीउल्लाह, भाई सफीउल्लाह चलेगा तो मुस्तफा के पीछे, नूह नजीउल्लाह चलेगा तो मुस्तफा के पीछे, इब्राहिम खलीलुल्लाह चलेगा तो मुस्तफा के पीछे, मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से बातें करने वाला अल्लाह का नबी अगर चलेगा तो उधर ही चलेगा जहाँ मुस्तफा चलेंगे। मजमा चुप हो जाए, जहाँ उठ के बोले मुर्दों को ठोकर से जिंदा करने वाला ईसा चलेगा तो मुस्तफा के पीछे चलेगा। यानी 1,23,999 अंबिया, सुल्तानी सब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह के 1,23,999 अंबिया बल्कि नहीं अरबों मुसलमान भी चलेंगे तो मुस्तफा के पीछे चलेंगे। उठाओ तारीख का वाकया, इधर हसन बैठा, इधर हुसैन बैठा, जिसके पीछे अंबियों की दीवार चल रही है। ईद वाले दिन मुस्तफा उधर चलेगा जिधर हुसैन चलेगा। छोड़ने लगा हूँ, जो बंदा मां की गोद से मातम करने वाला बैठा है, हुसैन का आशिक बैठा है, अफजार रजा सुल्तानी साहब के मौला इज्जत रिस्क वक्त में, मुनीर काज़मी साहब के इज्जत रिस्क वक्त में मौला मजीद और इजाफा फरमाए। जितने चल के हुसैन को फुर्सत देने के लिए आए हो, मालिक आपकी हर एक तमन्ना पूरी फरमाए। अफजार सुल्तानी साहब इस भाई सी जुबान से अगर आपने पहले ये जुमला सुना हो, मजमे को छुट्टी है, आप भी चुप करके बैठ जाइएगा। अगर आपने ना सुना हो, मजमा चुप कर जाए, लेकिन आप दुआ के लिए हाथ जरूर उठाइएगा। आज दुनिया फर्क ढूंढ रही है, हाफ़िज़े कुरान भी एक होता है और वारिसे कुरान भी एक होता है। बंदे कहते हैं हाफ़िज़े कुरान भी एक है, वारिसे कुरान भी एक है। तारीखी जुमला पढ़ने लगा हो, मिंबर से पहली बार पढ़ने लगा हो, और तुम्हें हाफ़िज़े कुरान और वारिसे कुरान में फर्क बताओ। जिसका गला 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 जिसका खुश्क हो जाए और वो कुरान ना पढ़ सके, उसे हाफ़िज़े कुरान कहते हैं। और जिसका गला कट के नोके नेज़ा पे सर चढ़ जाए, वो फिर भी कुरान पढ़े, उसे वारिसे कुरान कहते हैं। उसे वारिसे कुरान कहते हैं। मरना सबने है, मरना या नहीं? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुरान कह रहा है, हर नफ्स मौत का जायका चखेगी। जुमला तारीखी आखिरी पढ़ने लगा जो हुसैन का मातमी बैठा है, जिस बंदे के दिल की धड़कन में हुसैन धड़कता है। सुल्तानी साहब वो बंदा आज में मेरे साथ परवाज़ ना करे, जुमला सुन के जनाबे सैयदा ने कुछ अदा ही नहीं किया। जो हुसैन का मातमी बैठा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपने सर झुका के नहीं। इशारा समझने वाली जैसी ये कौम अल्लाह ने हमें दी, अल्लाह की पूरी कायनात में कहीं है नहीं। जुमला जो मैंने तरीक़ी पढ़ना है, इसने शब्बीर की कसम है भाईजान, उसके लिए शर्त ये है कि आपने सर झुका के नहीं। फ़ज़ाइल हुसैन का जुमला सर उठा के सुनना। अगर कोई बंदा इसकी दलील मांगे कि दलील क्या है, उसकी दलील ये है, मैं धीमे लहजे में बड़ा जुमला पढ़ने लगा हूँ, इसलिए सर उठा के सुनना है कि मैं फ़ज़ाइल उसका पढ़ने लगा हूँ जिसने नोके नेज़ा पे भी सर नहीं झुकाया था। जो नोके नेज़ा पे भी सर झुका के नहीं, सर उठा के बोला था। मौत ऐसी चीज जिसने बड़े बड़े बहादुरों को मारा, बड़े बड़े सूरमाओं को मारा, बड़े बड़े
पेशवाओं को मारा, सारा मजमा चुप हो जाए या घर तक मुझे दुआएं देता जाए। जुमला तो मैं यही पढ़ने लगा हूँ, जो बंदे मेरे सामने मुर्दा बन के नहीं मर्द बन के बैठे हो। मुबीन कंबर भाई, अवतार रज़ा सुल्तानी साहब और नकीब मिंबर साहब फराज भाई, इंतहाई तवज्जो चाहता हो, आपकी तवज्जो का तालब हो। जो बंदे मेरे सामने अभी भी नहीं ना बोल सके, मौत एक ऐसी चीज है जिसने बड़े बड़े बहादुरों को मारा, बड़े बड़े पेशवाओं को मारा, बड़े बड़े हाथियों को मारा। जिसका हाथ नहीं उठा, मौत ने बड़े बड़े बड़ों को मारा, बड़े बड़े पेशवाओं को मारा, मौत ने बड़े बड़े पहलवानों को मारा। जो हुसैन का मातमी है हल्के का, तारीख उठा के पढ़ो, मैं दलील आपकी हथेली पे रख के जाऊंगा। जैसे ही मौत करबला में पहुंची, हुसैन ने मौत को मार दिया। बंदा हुसैन का आदमी भी है, हाथ उठा के हुसैन को सलामी पेश नहीं कर सका। मैंने अपना दावा लफ्ज़ चक के इस इमाम बारगाह में हवा में नहीं छोड़ के जाना, दलील आपकी हथेली पे रख के जानी है। मैंने दावा किया जैसे मौत करबला में पहुंची, हुसैन ने मौत को मार दिया। उसकी दलील आपको हदिया करो, तवज्जो है सबकी, कीमत होगी जो मेरे सामने हुसैन के आदमी बैठे हो। मैंने जो दावा किया मौत करबला में पहुंची, मेरे पीर हुसैन ने मौत को मार दिया। अगर कोई बंदा इसकी दलील पूछे, इसकी सबसे बड़ी दलील ये है, जाओ जाके तारीख उठा के पढ़ो। अगर आदम से लेके आज तक के हर एक कत्ल होने वाले की गर्दन कट जाए, उसकी जुबान खामोश हो जाए, फिर मानना पड़ेगा मौत ने उसे मार दिया। अगर सर कट के नोके नेज़ा पे चढ़ जाए, जुबान कुरान की तलावत करे, फिर मानना पड़ेगा मौत ने हुसैन को नहीं, हुसैन ने मौत को मार दिया। दुआ करो, अल्लाह ना करे कभी कोई 4 साल की बच्ची अपनी आंखों के सामने अपने बाबे के गले पे चलता हुआ खंजर ना देखे। नहीं, जो हल्के के बाद में बैठे, माजरत के साथ शायद आपने जुमला सुना नहीं, जो छोटी छोटी औलाद वाले बैठे, मैंने कहा दुआ मांगो, अल्लाह ना करे कभी कोई 4 साल की बच्ची अपनी आंखों के सामने अपने बाबे के गले पे चलता हुआ खंजर ना देखे। जो हल्के का मामली भी है और आंख से अभी भी आंसू नहीं ना निकला, उसके मातम में इजाफे के लिए जुमला आसान करता हूँ। अज़ादारों, ये वो हुसैन के सीने का तवीज़ है, ये वो हुसैन की बेटी है जिसने सारी रात बिस्तर पे रोना है ना। अज़ादारों, मसाइब का जुमला सुन के उन्हें मैं मसाइब का जुमला हदिया करने लगा हूँ। ये वो हुसैन की शहजादी है जिसकी जिंदगी थोड़ी है, मुसीबतें ज्यादा है। और आसान करता हूँ, ये वो हुसैन की छोटी सी शहजादी है जिसे बाबे के सीने के बगैर नींद नहीं आती। और आसान कर देता हूँ, अज़ादारों, इस बीबी की शहादत अजीब भी है और गरीब भी है। मैंने दावा किया कि इसकी शहादत अजीब भी है और गरीब भी है। शबीर भाई, अजीब इसलिए कि शाम के जिंदान में मारी गई, जिसे अभी रोना ना आए वो बंदा बीबी से माफी मांगे। अजीब इसलिए शाम के जिंदान में मारी गई, और गरीब इसलिए सगा भाई सज्जाद कड़ियों वाले हाथों पे बहन का जनाजा रख के बाबे के कातलों से पूछ रहा था, यहाँ गरीबों का कब्रिस्तान कहाँ है। एक का एक जुमला पढ़ने की इजाजत देना, मुकम्मल शहादत नहीं, ना मैं पढ़ सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं। किताबें उठा के पढ़ना, ये वो हुसैन की शहजादी है जो अब्बास के बाजुओं में रही थी, जो जमीन पे इतना नहीं चली। मैं और आसान कर देता हूँ, छोटी सी बहन आपकी अगर आपके पीछे पड़ जाए ना, भाई मैंने तेरे साथ बाजार में जाना है, अगर आप उस बहन को लेके बाजार में चल पड़े, आप मेरी बात की तारीफ करेंगे, चंद कदम वो चलेगी, अभी मुंह से कुछ नहीं बोलेगी, जो बिला तशरीफ भाई की तरफ देखेगी, भाई समझ जाएगा कि मेरी बहन अब थक गई है। मैं इसे उठा लेता हूँ, यूं बिला तशरीफ भाई उठा लेता है। अज़ादारों, सफर देखना,
کا، حسین کی اس شہزادی کا عزادارو مدینہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، عزادارو میں نہیں پڑھتا کتنے بازار، کتنی گلیاں، کتنے موڑ، شام کا زندان، اتنا سفر کرنے کے بعد عزادارو جب علی کی عزت کی قسم ہے کرتی رہی ہے نا حسین کی شہزادی یہ سفر، اللہ جانے شام کے بازار میں کتنی بار حسین کی اس بیٹی نے سجاد کو دیکھا، تڑپ کے رو کے کہتے پہنا میرے ہاتھ بندے۔ آخری جملہ، اللہ نہ کرے مجلس کے بعد اس امام بارگاہ کے دروازے پہ ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہو، نہیں آتا آپ کو رونا زدہ ہو، جو بی بی کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، بی بی کے رونے کے دن ہے، رونے بھی آتے ہیں، زیادہ 1 یا 1.5 منٹ، زیادہ لمبا نہیں، اللہ نہ کرے مجلس کے بعد لائٹ بند ہو جائے، امام بارگاہ کے دروازے کے پاس ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہو جو رو رو کے کہہ رہی ہو میں اپنے پاپا کے ساتھ مجلس میں آئی تھی، کوشش کرو یار جو حلقے کے بعد بھی بیٹھے ہو آوازیں بلند کرو، میں ممبر بھائیوں کے حوالے کروں، اللہ نہ کرے وہ رو رو کے کہہ رہی ہو میں اپنے پاپا کے ساتھ آئی تھی، جو چھوٹی چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو نا آج سلامت باطنی کا ہے تو سینے پہ ضرور آنا چاہیے، عزادارو وہ رو رو کے کہہ رہی ہو میں اپنے پاپا کے ساتھ مجلس میں آئی تھی، اللہ جانے میرا پاپا کہاں چلا گیا، مجھے میرا پاپا نہیں مل رہا، ہم کیا کریں گے، ہم اس بچی کو تسلیاں دیں گے، ہم کہیں گے ابھی تیرا پاپا آ رہا ہے، اسے اطلاع ہو گئی ہے، ابھی وہ آئے گا تجھے ساتھ لے جائے گا، اور جس کا پاپا گم ہو جائے ہم اسے تسلیاں دیتے ہیں، ہم اسے تماچے نہیں مارتے۔ کربلا کے جنگل میں حسین کی 4 سال کی بچی